Dear learners, welcome back again in our today's session. So, as you can see that our today's session will be based on the block third, understanding disabilities. Under the block third, today we will discuss about the first topic, concept of impairment, disability and handicap. Before going to start our new topics, let's discuss about the unit third. Under the unit third, we are going to cover all these topics. So the first one is, as you can see that, concept of impairment, disability and handicap. And the second one is classification of disabilities based on ICF model. And the third one is readiness of school and models of inclusion. And the next one is prevalence, types, characteristics and educational needs of diverse learners, intellectual, physical and multiple disabilities. And the next one is causes and prevention of disabilities, identification of diverse learners for inclusion. And the last one is educational evaluation methods, techniques and tools. So our today's topic is concept of impairment, disability and handicap. जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ये जो कंसेप्ट है इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि इम्पेयरमेंट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, हैंडीकैप क्या है। सो द कंसेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड handicap are very essential to understanding the inclusive education and the broader field of disabilities. So basically, we have mentioned all these terms separately. So first, we will discuss about impairment. सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पेयरमेंट की कि इम्पेयरमेंट क्या है, इम्पेयरमेंट का अर्थ क्या है और इम्पेयरमेंट के एग्जाम्पल क्या है। So basically we talk about impairment. Impairment refers to any kind of loss or abnormality of psychological, physiological or anatomical structure or functions. Impairment is an objective, medically defined condition, often involving body functions or structures. It is typically identified through the medical diagnosis. So अगर हम बात करें इम्पेयरमेंट की, तो इम्पेयरमेंट एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर एक व्यक्ति की बॉडी में, उसके शरीर में जब किसी भी प्रकार का लॉस, क्षति पाई जाती है तो हम उसे इम्पेयरमेंट की श्रेणी में रखते हैं। ये किसी भी प्रकार की क्षति हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और एनाटॉमिकल भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन पर कि उसमें किस प्रकार की क्षति है। अगर हम बात करें कि इम्पेयरमेंट को कैसे डायग्नोस किया जाएगा, तो डायग्नोस किया जाता है इसे मेडिकली इसे डिफाइन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। और अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इम्पेयरमेंट के। सो let's discuss about the examples of impairment. So the first example is those who lost their hearing capacity are known as hearing impaired. अगर किसी पर्सन की सुनने की क्षमता कम हो गई है या खत्म हो गई है, तब हम उसे कहेंगे कि hearing impaired child. The second one is those who lost their vision are called as visually impaired. एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको देखने की क्षमता कम हो गई है, खत्म हो गई है, उसे हम किस श्रेणी में रखते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड। सो बेसिकली ओवरऑल अगर हम बात करें इम्पेयर्ड क्या है, इम्पेयर्ड शरीर में, व्यक्ति की बॉडी में किसी ऑर्गन की कहीं ना कहीं क्षति हो जाना, क्षय हो जाना
या लॉस हो जाना आपका इम्पेयरमेंट की कंडीशन में आता है, और इसे मेडिकल के द्वारा इसे डायग्नोस किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है। और ये जैसे एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की हमने अगर बात की, अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में पैर की क्षति हो गई है तो हम उसे इम्पेयरमेंट की कंडीशन में रखेंगे। तो बेसिकली ओवरऑल इम्पेयरमेंट क्या है? इम्पेयरमेंट इट रेफर्स टू एनी लॉस और abnormality of psychological or physiological. Now next we are going to discuss about the characteristics of impairment. अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं क्या क्या हैं इम्पेयरमेंट की, तो इम्पेयरमेंट की कुछ विशेषताएं हैं जो यहाँ मेंशन की हुई हैं। तो पहली विशेषता है बायोलॉजिकल कंडीशन। बायोलॉजिकल कंडीशन it refers to the physical, mental or sensory differences in an individual's body. Impairment, अगर impairment की प्रॉब्लम अगर किसी व्यक्ति के साथ है, किसी बच्चे के साथ अगर इस प्रकार की समस्या है, तो उस पर्सन में फिजिकल और मेंटल और सेंसरी डिफरेंसेस रिफ्लेक्ट होंगे। अगर कोई पर्सन सेंसरी, फिजिकल और मेंटल डिफरेंसेस किसी व्यक्ति में, किसी पर्सन में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? इम्पेयरमेंट की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट आता है फंक्शनल डेविएशन। डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन। कोई व्यक्ति किसी कार्य को, सामान्य कार्य को करने में सामान्य रूप से या सामान्य व्यक्ति की भांति नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम उस बच्चे के साथ, उस व्यक्ति के साथ है। फॉर एग्जाम्पल सच एज अ लॉस ऑफ लिम्ब, विजन और कॉग्निटिव फंक्शंस। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, मेडिकल पर्सपेक्टिव्स। इट्स ऑफन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड इन अ मेडिकल और क्लिनिकल टर्म्स। ये जनरली इम्पेयरमेंट आपके मेडिकल और के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। कहीं ना कहीं जो आपकी समस्याएं हैं, जो इम्पेयरमेंट की समस्याएं हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति का विजन बहुत कम हो गया है। अब विजन कम हो गया है, उसके लिए उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की, ये हम डायग्नोस कैसे करेंगे कि उसका विजन कितना कम हुआ है? उसके लिए वह व्यक्ति कहाँ जाएगा? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और उसके विजन को चेक किया जाएगा, और चेक करने के बाद जो आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कितने उसका विजन कितने % लॉस हुआ है। तो बेसिकली जो इम्पेयरमेंट की समस्या है वह एक मेडिकल के द्वारा डायग्नोस की जाती है और डिफाइन की जाती है। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिसिटी। इट कैन बी अ स्पेसिफिक टू सर्टेन बॉडी पार्ट्स और फंक्शंस। इम्पेयरमेंट को स्पेसिफाई किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को विजन की समस्या है, दैट मीन्स उसकी एक प्रॉब्लम है विजुअली इम्पेयर्ड की। अब नेक्स्ट आता है, जैसे अगर हम अदर एग्जाम्पल लें, किसी व्यक्ति के लिए सुनने में प्रॉब्लम है, सुनाई कम दे रहा है, तो उसे प्रॉब्लम किसकी है? कहीं ना कहीं उसे समस्या है, उसे सुनने में दिक्कत आ रही है या सुनने में प्रॉब्लम है, हियरिंग इम्पेयर्ड। नेक्स्ट आता है कॉजेज। क्या कॉजेज हैं, क्या कारण हो सकते हैं इम्पेयरमेंट के? तो बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। हेरिडिटी है, किसी को अपने पेरेंट्स से इम्पेयरमेंट की समस्या मिलती है, या किसी के लिए कोई इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया किसी के साथ, किसी दुर्घटना में किसी ने अपना एक पैर खो दिया, तो ये क्या है? इम्पेयरमेंट है। और इलनेस, किसी बीमारी के कारण किसी का विजन कम हो गया, किसी गंभीर समस्या की वजह से उसके सुनने की क्षमता खत्म हो गई। और एजिंग, ये बहुत सामान्य सी बात है। जब एक पर्सन जब एक एज में आता है, 50+ या 60+ की एज में आता है, ओल्ड एज में आता है, तो उसको विजन की समस्या, सुनने में प्रॉब्लम, ये एक सामान्य आम सी बात है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इम्पेयरमेंट की समस्याएं व्यक्ति के समक्ष आती हैं। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट इम्पैक्ट। डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पेयरमेंट की समस्या व्यक्ति के डेली लाइफ में, जीवन में डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है।
चाहे वह उसके एजुकेशनल हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे वह उसकी डेली लाइफ से रिलेटेड है. सो इट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल्स फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज डायरेक्टली. यह बालक की मेंटल एज वेल एज फिजिकल कैपेबिलिटीज के लिए डायरेक्टली अफेक्ट करती है. Now next we are going to discuss about disability. If we talk about the disabilities, so disabilities is a term used to describe a physical or mental condition that significantly limits a person's movement, senses or activities. Disability एक ऐसी समस्या है जहाँ पर व्यक्ति की जो एक्टिविटी है वो लिमिट हो जाती है. पर्सनल लेवल पे जो व्यक्ति है किसी कार्य को करने में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करता है, तब हम उसे किस श्रेणी में रखते हैं? डिसेबिलिटी की श्रेणी में. और डिसेबिलिटी किससे आती है? इम्पेयरमेंट से. इम्पेयरमेंट क्या है? इम्पेयरमेंट एक लॉस है, एक एबनॉर्मेलिटी है, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल. और डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी एक अवस्था है, उस अवस्था में व्यक्ति अपने आप को किसी भी कार्य को, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में सक्षम नहीं पाता है. सो डिसेबिलिटीज कैन बी congenital दैट मीन्स आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, बच्चे को जन्म से ही बच्चे में व्याप्त है. और एक्वायर्ड दैट मीन्स इट डेवलप्ड लेटर इन लाइफ ड्यू टू इंजरी, इलनेस और अदर फैक्टर्स. एक्वायर्ड किस प्रकार से हो सकती है? व्यक्ति के जन्म के बाद किसी गंभीर समस्या से वह ग्रसित हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, या अन्य किसी कारणवश उसके अंदर डिसेबिलिटी आ गई. सो द इम्पैक्ट ऑफ अ डिसेबिलिटीज वेरीज वाइडली अमंग द इंडिविजुअल्स एंड कैन अफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ. डिसेबिलिटी के कारण बहुत सारे जो आपकी डेली लाइफ है वह अफेक्ट होती है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, हर तरीके से आपकी लाइफ जो है वो अफेक्ट होती है. आप किसी कार्य को करने में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करते हैं. सो लाइक we see the including a communication, mobility, learning and self-care. It refers to the functional limitations or restrictions in performing activities that result from an impairment. Impairment के कारण व्यक्ति में क्या आता है? डिसेबिलिटी आती है. बच्चा अपने आप को, व्यक्ति अपने आप को किसी कार्य को करने में सक्षम महसूस नहीं करता है. Examples of disabilities are given below. So the first one is difficulty in walking due to a spinal cord injury. स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ये क्या है? आपका इम्पेयरमेंट है. और इम्पेयरमेंट और डिफिकल्टी क्या आ रही है बच्चे के लिए? डिफिकल्टी इन वॉकिंग ड्यू टू आ, उसको वॉक करने में, उसको चलने में समस्या आ रही है. और किसके कारण आ रही है? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जो किससे डायग्नोस हुई है? इम्पेयरमेंट मेडिकल के थ्रू. नेक्स्ट आता है चैलेंजेस इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ड्यू टू कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट. कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की वजह से बच्चे के लिए लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग में समस्या आ रही है. नेक्स्ट है ट्रबल विद सोशल इंटरेक्शन ड्यू टू ऑटिज्म. ऑटिज्म क्या है? इम्पेयरमेंट है और उसको समस्या क्या आ रही है? ट्रबल कर रहा है सोशल इंटरेक्शन करने में, उसको सोशल के साथ, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करने में समस्या आ रही है. सो बेसिकली अगर हम बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या है? इम्पेयरमेंट है. उसको समस्या क्या आई बच्चे के लिए? बच्चे ने क्या डिफिकल्टी फेस करी? वॉक करने में. सेम कॉग्निटिव क्या? कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की वजह से बच्चे के लिए लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आई. नेक्स्ट है ऑटिज्म. ऑटिज्म क्या है? इम्पेयरमेंट है और बच्चे के लिए समस्या किस में आई? ऑटिज्म की वजह से ट्रबल विद सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन करने में उसे समस्या आई. यहाँ एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स पिक्चर्स के थ्रू दर्शाए गए हैं. नेक्स्ट आता है आपका ओवरऑल अगर हम बात करें डिसेबिलिटीज की. सो इन ब्रीफ डिसेबिलिटीज रेफर्स टू अ कंडीशन वेयर वन could not perform his activities as of a normal person, difficulty in understanding or experiences various day-to-day activities. एक सामान्य व्यक्ति के समान किसी
टास्क को परफॉर्म ना कर पाना डिसेबिलिटी कहलाता है। और ये डिसेबिलिटी कहाँ से आती है? इम्पेयरमेंट की वजह से। Now, next we are going to discuss about characteristics of disabilities. If we talk about the characteristics of disabilities, we have mentioned a few characteristics of disabilities. The first one is functional limitations. Functional limitations, that means restrictions in performing activities or participating in typical daily activities. Restrictions कहीं ना कहीं जो डिसेबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है व्यक्ति के लिए अपना कोई भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। डिसेबिलिटीज़ की वजह से बच्चा सामान्य बालक की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह उस टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाता है, उसे डिफिकल्टी आती है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स नीड्स may requires a various support such as assistive technologies, medical care and accommodation. डिसेबल्ड बच्चों के लिए कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारे सपोर्ट की, जैसे असिस्टिव टेक्नोलॉजीज और मेडिकल केयर प्लस एकोमोडेशन। द नेक्स्ट थर्ड वन इज डाइवर्स रेंज कैन इंक्लूड द फिजिकल, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल, मेंटल हेल्थ एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज। डिफरेंट डिसेबिलिटीज डिफरेंट टाइप की हो सकती है। इट कैन बी ए फिजिकल, इट कैन बी ए सेंसरी, इट कैन बी इंटेलेक्चुअल, मेंटल and learning disabilities. Next one is permanency. Permanency, it may be a temporary, permanent and fluctuate over the time. कभी कभी ये permanent हो सकती है, temporary हो सकती है और fluctuate भी हो सकती है over the time. It depends on the condition. It depends on the nature of impairment. Next आता है visual और invisual. Sometimes disabilities are apparent while others are not immediately visible. कभी कभी जो डिसेबिलिटी है वह विजिबल होती है और कभी कभी इनविजिबल होती है। अगर किसी व्यक्ति में, किसी बालक में अगर मेंटल डिसेबिलिटी है तो मेंटल डिसेबिलिटी हमें कब पता लगेगी? जब हम उसके साथ इंटरेक्शन करेंगे, उससे बात करेंगे और उसकी चीज़ों को जानेंगे। और जब हम बात करें विजुअल की, तो अगर किसी व्यक्ति ने किसी दुर्घटना में अपना एक पैर खो दिया है, अगर व्हील चेयर पर यात्रा करता है या व्हील चेयर के सहारे चलता है, तो हमें उसे सामने से ही पता लग जाएगा कि वह व्यक्ति डिसेबल है चलने में, तो वह क्या है? विजुअल है। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट डालती है डिसेबिलिटी हमारी लाइफ पर, हमारे जीवन पर? सो इट कैन अफेक्ट एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल इंटरेक्शन एंड ओवरऑल वेलबींग। डिसेबिलिटी बहुत अफेक्ट करती है हमारी लाइफ के लिए। अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट में भी अफेक्ट करती है, एजुकेशन में भी अफेक्ट करती है, सोशल इंटरेक्शन में भी। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज हैंडीकैप। हैंडीकैप क्या है? हैंडीकैप नाउ लेस कॉमनली यूज्ड इन फेवर ऑफ सोशल डिसएडवांटेजेस और environmental barriers. It refers to the societal and environmental consequences of an impairment or disability. It emphasizes the social and attitudinal barriers that individuals with disabilities face, which hinders their full participation in society. हैंडीकैप की अगर हम बात करें तो हैंडीकैप क्या है? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया गया है, दर्शाया गया है। हैंडीकैप नॉट एबल टू क्लेम द स्टेयर। किसकी वजह से वह स्टेयर नहीं चढ़ पा रहा है? हैंडीकैप की वजह से। उसकी व्हील चेयर का यूज करता है। प्रॉब्लम कहाँ है? उसकी समस्या है उसको चलने में, उसके फिजिकली वह फिट नहीं है, इस वजह से उसे स्टेयर्स को चढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है हैंडीकैप की। तो द फर्स्ट वन इज सोसाइटल बैरियर्स। सोसाइटल बैरियर्स दैट मीन्स डिसएडवांटेजेस अराइजिंग फ्रॉम एनवायरमेंटल, एटीट्यूडनल एंड सिस्टमैटिक ऑब्स्टिकल। बच्चा कहीं ना कहीं
सोसाइटी के द्वारा जो और सामान्य व्यक्तियों के लिए, सामान्य छात्रों के लिए जो सुविधाएं प्रदान की जा रही है वह वो एडवांटेजेस नहीं ले पाता है। और ये एडवांटेजेस इन्वायरमेंट के जो एडवांटेजेस हैं, एटीट्यूडनल एंड सिस्टमेटिक ऑब्स्टिकल उसके सामने, उसके समक्ष आते रहते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, कैन वेरी बेस्ड ऑन सोशल, कल्चरल एंड physical environment. And the third one is loss of opportunities, limited access to education, employment, transportation and social participation. हैंडीकैप में जो व्यक्ति है उसको लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा को है लिमिटेड एक्सेस कर पाता है। जैसे सामान्य विद्यार्थियों के लिए शिक्षा है उस प्रकार समान रूप से उसे शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती है। एम्प्लॉयमेंट में भी उसके लिए कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी उसे समस्याएं आती हैं, और सोशल, किसी भी सोसाइटी में किसी भी जो सोशल पार्टिसिपेशन होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें भी वो पार्टिसिपेट करने में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करता है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स, इट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटल एटीट्यूड्स, पॉलिसीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। Now next we are going to discuss impairment, disability and handicap again. So impairment क्या है? impairment एक प्रकार का लॉस है, और डिसेबिलिटी क्या है? ये एक्टिविटी लिमिटेशन है, और हैंडीकैप क्या है? सोशल डिसएडवांटेज है। चलिए हम इसको ना डिटेल में क्लियर करते हैं। इम्पेयरमेंट ये जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की विजुअल या विजन में कहीं ना कहीं कमी है, वह देख नहीं पा रहा है ठीक से, तो उसका क्या है? विजुअली इम्पेयर्ड। और ये किस लेवल पे हुआ? ऑर्गन लेवल पे। अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट कि एक व्यक्ति को सुनने में समस्या आ रही है, तो उसको सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स हियरिंग इम्पेयर्ड। पर्सन क्या हुआ? हियरिंग इम्पेयर्ड। और ये किस लेवल पे हुआ? ऑर्गन लेवल पे। अब बात करते हैं डिसेबिलिटी की, एक्टिविटी एंड लिमिटेशन। एक्टिविटी एंड लिमिटेशन की अगर हम बात करें कि जो व्यक्ति है, सामान्य बालकों की तरह वह व्यक्ति किसी भी टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति जिसे समस्या आ रही थी विजन की, वह सामान्य विद्यार्थियों की तरह रीड आउट नहीं कर पाएगा, उसकी एक्टिविटी क्या हो गई? लिमिट हो गई। जब तक वह कहीं ना कहीं स्पेक्स का यूज नहीं करेगा, इस जो कहीं ना कहीं उसके लिए जो समस्याएं हैं, विजन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, उसके लिए जो प्रॉब्लम आ रही है विजन से रिलेटेड, उसके लिए वह अगर चश्मे का यूज नहीं करेगा तो वह सामान्य बच्चों की भांति उस पैराग्राफ को रीडिंग नहीं कर पाएगा। और ये किस लेवल पे हुई? पर्सन लेवल पे। ये जो समस्या थी, डिसेबिलिटी थी, वो किस लेवल पे आ गई है? पर्सन लेवल पर। इम्पेयरमेंट किस लेवल पे था? ऑर्गन लेवल पर। अब बात करते हैं हैंडीकैप की। हैंडीकैप क्या है? सोशल डिसएडवांटेजेस। सोशल डिसएडवांटेजेस पर ये किस लेवल पे आता है? सोसाइटल लेवल पे। इम्पेयरमेंट किस लेवल पर? ये लॉस फंक्शनल है और लॉस है। डिसेबिलिटी क्या है? एक्टिविटी लिमिटेशन। हैंडीकैप क्या है? सोशल डिसएडवांटेजेस। इम्पेयरमेंट ऑर्गन लेवल पे, किसी ऑर्गन में क्षति हो जाना। डिसेबिलिटी पर्सन लेवल पे है, कोई व्यक्ति किसी भी टास्क को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ इम्पेयरमेंट। और हैंडीकैप क्या है? सोसाइटल लेवल पे है, जो व्यक्ति है वो एडवांटेजेस नहीं ले पा रहा है जो सोसाइटी में और लोगों को मिल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट impairment, disability and handicap again. So impairment, any kind of loss or abnormality of psychological, physiological or anatomical structure or function, किसी भी प्रकार का लॉस होना, क्षति होना बॉडी में, ऑर्गन में, ये इम्पेयरमेंट कहलाता है। डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी इज any kind of restrictions or lack of ability to perform an activity in the manner of within the range considered normal for a
ह्यूमन बीइंग किसी भी टास्क को परफॉर्म ना कर पाना, ये क्या कहलाता है? डिसेबिलिटी। सामान्य बालकों की भांति, सामान्य छात्रों की भांति किसी भी कार्य को परफॉर्म नहीं कर पाना डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। डिसेबिलिटी आती है इम्पेयरमेंट से। हैंडीकैप, हैंडीकैप इट इज अ कंडीशन. So basically, handicap are disadvantages for a given individual that limits or prevents the fulfillment of the role that is a normal. Handicap एक समस्या है। समस्या किस प्रकार की है कि जो व्यक्ति है, जो छात्र है, वह सोसाइटी में जो और लोगों के लिए एडवांटेजेस मिल रहे हैं वह नहीं ले पाता है। तो जो आपका इम्पेयरमेंट है वो बॉडी लेवल पे आता है, डिसेबिलिटी एक्टिविटी लेवल पे और हैंडीकैप सोसाइटी लेवल पर। चलिए नेक्स्ट, इम्पेयरमेंट जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ये फंक्शनल है और लॉस है किसी भी ऑर्गन का, ये आपका कहलाता है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट लीड्स टू डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट की वजह से एक व्यक्ति किसी भी एक्टिविटी के लिए करने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा है, ये कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी लीड्स टू हैंडीकैप और डिसेबिलिटी की वजह से क्या आते हैं? हैंडीकैप। ये जो सोशल डिसएडवांटेजेस हैं, ये सोशल जो एडवांटेजेस और लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए दिए जा रहे हैं, वह सामान्य व्यक्ति की भांति उस उन एडवांटेजेस का लाभ नहीं उठा पाता है। और ये किस लेवल पे होता है? सोसाइटल लेवल पे। सो बेसिकली अगर हम बात करें handicap की, so it results from a impairment or a disability which deprives the person of having access to facilities which are available to non-disabled person, thereby limiting their functioning. So basically, if we talk about impairment, impairment is a medical term that describes a physical, mental or sensory condition. And on the other hand, if we talk about disability, disability is a social construct that reflects societal barriers and restrictions. And if we talk about handicap, handicap describes the intersection of impairment and disability with the social and environmental factors that limits an individual's ability to participate fully in society. Thank you.